ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس یتیم خانے کی وارڈن میری سوچ سے بھی زیادہ بے رحم تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے سینے میں دل کہیں موجود ہی نہ ہو۔ سب بچوں کے ساتھ وہ برا سلوک کرتی تھی۔ نہ صرف بچوں پر وہ سختی کرتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس یتیم خانے میں نوکری کرنے والے ملازموں پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالتی تھی۔ پورا دن صفائی کر کر کے میری کمر دکھ رہی ہوتی تھی۔ رات کو چند گھڑی آرام کرنے کے لیے لیٹتی کہ وارڈن دوبارہ سے آ جاتی اور تقریباً رات 12 بجے مجھے اٹھا کر باغ کے پچھلے حصے کی صفائی پر لگا دیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ رات کے اس وقت یہ مجھ سے ہی صفائی کیوں کرواتی ہے، حالانکہ دن میں بھی تو میں اس حصے کی صفائی کر سکتی ہوں، مگر دن کے وقت مجھے یہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے اس پر غور کیا اور اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے بھی پوچھا، لیکن ہر کسی نے مجھے یہی جواب دیا کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ وارڈن کے کاموں کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی کسی کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ کون سا نیا حکم سنا دے گی۔ وارڈن کا موڈ ہر لمحے بدلتا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ خوش ہوتی تھی تو دوسرے ہی لمحے اسے اتنا شدید غصہ آ جاتا تھا کہ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی گھبراتے تھے۔ شروع میں وارڈن کو میں دل میں بہت گالیاں دیتی تھی اور اسے بددعاؤں سے نوازتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ میں بھی صبر آنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے وارڈن کی ذہنی حالت پر شک ہوتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی ذہنی بیماری سے گزر رہی ہے، اسی لیے اسی طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ میں نے بھی اب اس سے بحث کرنا چھوڑ دیا تھا، اور نہ ہی اب میں اس سے پہلے کی طرح لڑائی کرتی تھی، بلکہ اگر وہ مجھے کوئی مشکل کام کہہ بھی دیتی تو میں خوشی خوشی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ دراصل یتیم خانے کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ سامنے کی طرف تھا جبکہ دوسرا دروازہ پیچھے بنے باغ کی طرف تھا، لیکن پچھلا دروازہ کافی عرصے سے بند تھا۔ کوئی بھی یہاں سے آتا جاتا نہیں تھا، یہاں تک کہ بچوں کو بھی اس طرف آنے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف وارڈن ہی تھی جو اکثر یہاں پر پائی جاتی تھی۔ یتیم خانے کے تمام بچے ہر وقت ڈرے سہمے رہتے تھے۔ وارڈن نے انہیں حد سے زیادہ خوفزدہ کیا ہوا تھا۔ کوئی بھی بچہ وارڈن کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ رات تقریباً 8 بجتے ہی سب اپنے کمروں میں چلے جاتے اور پھر صبح 9 بجے وارڈن انہیں دوبارہ سے اٹھا دیتی تھی۔ کم از کم وارڈن کی مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی کہ وہ بچوں کو آرام کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت دیتی تھی۔ اس دوران کسی کو بھی بچوں کے کمرے کی طرف جانے کی ہرگز بھی اجازت نہیں تھی۔ خیر، مجھے بھی ان سب میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا کام صرف اور صرف یہاں کی صفائی کرنا اور پیسے کما کر اپنے گھر پر بھیجنا تھا۔ چونکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے اور میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا، اسی وجہ سے میری یہاں پر نوکری مجبوری تھی۔ اگر میرا شوہر مجھے آج یہ کہتا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تو میں اسی لمحے یہ کام چھوڑ دیتی، کیونکہ مجھے یہ یتیم خانہ ہرگز بھی پسند نہیں تھا۔ یہاں مجھے بہت ہی عجیب و غریب احساس ہوتا تھا۔ ایک رات دوبارہ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہو۔ آواز بہت دور سے آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو دائیں جانب وارڈن کھڑی تھی۔ وہ میری طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر میں بہت حیران رہ گئی۔ میں زندگی میں پہلی بار اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے جب بھی اسے دیکھا تھا اس کے چہرے پر 12 ہی بجے ہوتے تھے، لیکن جب میں نے اس کا اگلا حکم سنا تو میرا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا، جلدی سے اٹھو اور پچھلے باغ کی جا کر صفائی کرو۔ میں نے اسے کہا کہ کل رات ہی میں نے وہ باغ بہت اچھی طرح سے صاف کر دیا تھا۔ وارڈن نے غصے سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی،
अगर तुम्हें अपनी नौकरी अजीज नहीं है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी जगह किसी और औरत को रख लेती हूँ। वैसे भी आजकल मुल्क में हर तरफ बहुत गुर्बत छाई हुई है। तमाम लोग ही बहुत मजबूर हैं और नौकरियों की तलाश में निकले हुए हैं। ऐसे में मुझे यकीन है कि मुझे बहुत जल्द एक ऐसी औरत मिल जाएगी जो मेरी बातों पर यूं सवाल नहीं किया करेगी। वार्डन की बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई, क्योंकि वार्डन का कोई भरोसा नहीं था। ये वाकई मुझे यहाँ से निकाल सकती थी। मैंने तेजी से उससे माफ़ी मांगी और उससे कहा, बीबी जी अब गुस्सा क्यों करती हैं? मैं अभी जाकर बाहर सफाई कर लेती हूँ। मेरी बात सुनकर वो दोबारा से मुस्कुराने लगी। आज वार्डन की मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा ही नहीं हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। जैसे ही मैं बाहर गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। पूरे बाग में उस वक्त पत्ते बिखरे हुए थे। यूं लग रहा था जैसे थोड़ी देर पहले एक बहुत ही तेज तूफान आया हो। मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। तूफान का कहीं भी कोई शुबा नहीं था। मैंने देखा कि घास गीली भी थी, जैसे बारिश हुई हो। ये सब देखकर मैं बहुत हैरान रह गई और सोचने लगी कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। आसमान पर बारिश और तूफान का नामो निशान नहीं है, जबकि पूरी जमीन यूं गीली हुई है जैसे थोड़ी देर पहले धुआंधार बारिश हुई हो। अभी मैं खड़ी यही सोच रही थी कि अचानक से मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो मुझे वहां पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। चूंकि वार्डन ने मुझे सख्ती से मना किया था कि किसी को भी बाग में दाखिल मत होने देना, इसी वजह से मैं परेशान हो गई और सोचने लगी कि कौन है जो मेरे अलावा यहाँ पर आ सकता है। मैं तेजी से उस तरफ गई, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। पीले रंग का एक बल्ब लगा हुआ था, जिसकी रोशनी में वहां का मंजर बमुश्किल ही नजर आ रहा था। थोड़ी देर तक तो मैं वहीं पर खड़ी सोचती रही। अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने जल्दी से दाएं जाने पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे अपने नाम की पुकार बाएं जानिब से सुनाई दे रही थी। मैंने वहां देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यूं लग रहा था जैसे थोड़ी ही देर बाद मेरा दिल सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। मुझे जिन्नात पर हद से ज्यादा यकीन था और मैं जानती थी कि उनका वजूद इस दुनिया में मुमकिन है। और मैं ये भी जानती थी कि रात के वक्त उनका बाहर निकलने का टाइम 12 से 2 तक है। इससे पहले कि मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती, मुझे एक गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसने मेरी सारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा दी। मैं सोच में पड़ गई कि रात इस वक्त इस दरवाजे पर कौन आ सकता है। अचानक ही मुझे अपनी वार्डन की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे ही पुकार रही थी। मैं तेज़ी से उस जानिब चली गई। मैंने देखा वहाँ वार्डन मौजूद नहीं थी, लेकिन गेट के पार एक गाड़ी खड़ी थी। एक शख्स अजीबोगरीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि जैसे वो शख्स जिंदा हो। मुझे वो कोई मुर्दा इंसान लग रहा था। उसने अपनी नज़रें मुझ पर मरकूज की हुई थी और वो पलक झपके बगैर ही मुझे देखे चला जा रहा था। एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल तेज़ी से धड़का, लेकिन फिर मैंने अपने आप पर काबू पाया और यूं जाहिर किया जैसे मुझे उन लोगों को रात के इस वक्त यहाँ पर देखकर ज़रा भी हैरानगी नहीं हुई। जैसे ही मैं उस गाड़ी के करीब जाकर रुकी, एक सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। यकदम ही मेरे पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। मेरी ये हालत देखकर वो इंसान मुस्कुराने लगा। मैंने गाड़ी का नंबर प्लेट देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो गायब थी, जिसकी वजह से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये गैर कानूनी गाड़ी है और गाड़ी की हालत भी बहुत ख़राब लग रही थी। वो बहुत ही पुरानी मालूम हो रही थी। इंजन की जितनी आवाज़ थी, मुझे लग रहा था कि थोड़ी ही देर बाद तमाम लोग उठ जाएंगे। मगर हैरत की बात यह थी
कि 15 मिनट वहां पर मैं खड़ी रही, लेकिन उस 15 मिनट में वहां पर कोई शख्स भी नहीं आया। यूं लग रहा था जैसे सारे घोड़े गधे बेच कर सो रहे हों। मुझे अपनी वार्डन पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो मुझे यहां पर बुलाकर खुद न जाने कहां पर चली गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एक नौमौलूद बच्ची मेरे हवाले की और मुझे कहने लगा, इस बच्ची को छुपाकर अंदर ले जाओ और अपनी वार्डन के हवाले कर दो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और उससे कहने लगी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर ये बहुत ज़रूरी काम है तो तुम खुद ये कर दो। मैं इस बच्ची को हरगिज़ भी अंदर लेकर नहीं जा सकती। मेरी बात सुनकर चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। जैसे ही मेरी आंखें उसकी आंखों से जाकर मिली, मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिल धड़कना रुक गया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। न जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ने लगे हैं। इससे पहले कि उसका चेहरा खौफनाक हो जाए, मैंने जल्दी से खौफ से आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा उसने एक मोटी रकम मेरे सामने रखी हुई थी। उसने वो रकम मेरे हाथों में दी और मुझे कहने लगा, देखो, तुम्हें इस छोटे से काम के इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है तुम इंसानों के लिए पैसों से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं। उसकी बात सुनकर मैं शशोपंज में मुब्तला हो गई और सोचने लगी, ये मुझे तुम इंसान कहकर क्यों मुखातिब कर रहा है? क्या ये खुद इंसान नहीं है? अभी मैं इन्हीं सोचों में मुब्तला थी जब मुझे दोबारा से उसकी आवाज़ सुनाई दी, फजूल सोचना बंद करो और जो मैंने तुम्हें कहा है वो करो, ताकि बाद में भी तुम्हें इस तरह के अच्छे खासे पैसे मिल सके। मैंने पैसे गिनना शुरू किए तो मेरी गिनती ही ख़त्म हो गई। वो हद से ज़्यादा बड़ी रकम थी। मैं सोच रही थी कि अब ये रकम लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी कि अचानक ही मुझे उसकी आवाज़ दोबारा से सुनाई दी, तुमने पूरा 1 हफ्ता यहाँ पर आना है और मुझसे बच्ची लेकर यतीम खाने के अंदर जाना है। अगर बीच में तुमने कहीं भी जाने की कोशिश की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे तीनों बच्चों को गायब कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि उसे मेरे बच्चों के बारे में कैसे पता। थोड़ी देर बाद जब उसने मुझे तमाम तफसील बताई तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इससे पहले ही मेरे बारे में सब कुछ पता लगाया हुआ है और यकीनन जिसे इस बारे में वार्डन ने ही बताया होगा। मुझे इस वक्त अपनी वार्डन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर मैं खामोश रहने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने उस बच्चे को उठाया और उसे लेकर तेज़ी से अंदर चली गई, जहाँ पर वार्डन मेरे कमरे के बाहर ही खड़ी बेचैनी से टहल रही थी। मुझे देखकर वो तेज़ी से मेरे पास आई और मेरे हाथों से बच्ची लेते हुए कहने लगी, क्या उसने इसके बदले तुम्हें कुछ दिया? वार्डन की बात सुनकर मेरे कानों में उस वक्त के अल्फाज घूमने लगे। उसने मुझे सख्ती से मना किया था कि वार्डन के उन पैसों के बारे में नहीं बताना, वरना वो तुमसे सारे पैसे छीन लेगी। इसका इनाम हमने इसके लिए अलहदा से रखा हुआ है और वक्त आने पर हम उसे इसका इनाम दे देंगे। उस आदमी की बात सुनकर मैं मुस्कुराई थी। यकीनन वो वार्डन की लालच के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वार्डन की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि उसने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मेरी बात सुनकर वो टटोलती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और मुझे कहने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो तुमसे इतना बड़ा काम करवाए और मुआवजे में तुम्हें कुछ भी ना दे? वार्डन की बात सुनकर मैंने तेज़ी से कंधे उचका दिए और उसे कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, यह आपका और उसका मामला है, आप बाद में उसे पूछ लीजिएगा। ये कहकर मैं खामोश हो गई। वार्डन चंद लम्हे तो मुझे गुस्से से देखती रही, मगर अब मुझे उसके गुस्से से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरे पास उस वक्त अच्छी खासी रकम मौजूद थी। वो पूरी रात मैंने खुशी से जागते हुए गुजारी। अगले दिन मैं उठी और तेज़ी से वार्डन के पास गई और उससे कहा कि वो बच्चे कहाँ पर हैं
मेरी बात सुनकर उसने इंतहाई अफसोस से कहा कि वो बच्ची मर गई है। वार्डन बज़ाहिर बड़े अफसोस से बात कर रही थी, लेकिन उसके लहजे से बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो रहा था कि वो ज़रा भी अफसरदा है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही कमीनगी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैंने बेचैनी से पूछा कि वो बच्ची कहाँ पर है। वार्डन ने एक बेड की तरफ इशारा किया। मैं तेज़ी से भागती हुई बच्ची के पास गई। वो वाकई सर्द पड़ी थी, उसकी सांसें रुक चुकी थीं। एक लम्हे के लिए मेरा दिल तेज़ी से धड़का। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। न जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे इन सब के पीछे वार्डन का ही हाथ है। वार्डन ने मुझे कहा, चलो अब जल्दी से यहाँ से उठो और बाहर की तरफ जाओ। मैंने उससे पूछा कि आप इस बच्चे का क्या करोगी? उसने मुझे कहा, फिलहाल तुम अपना मुंह बंद रखो और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लेती हूँ। तो मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ के बड़े निगरान को इस बारे में पता है? मेरी बात सुनकर उसने तेजी से हाँ में सर हिलाया और मुझे कहने लगी, जाहिर सी बात है, अब ये काम उससे छुपकर तो नहीं कर सकती। निगरान को क्या, सब लोगों को ही इस बारे में पता है, लेकिन इस बच्चे की मौत के बारे में मैं बाकी बच्चों को नहीं बताना चाहती, वरना वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। वार्डन की बात सुनकर मुझे हैरानगी होने लगी और मैं सोचने लगी कि उसे कब से बच्चों की टेंशन होने लगी। खैर, मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पर ना रुकी, बल्कि तेज़ी से अपने कमरे में वापस आ गई। आज वार्डन ने मुझे सफाई करने के लिए भी नहीं बोला था और ना ही वो मुझसे कोई दूसरा काम करवा रही थी। वो पूरा दिन मैंने अपने कमरे में ही गुजारा। हफ्ते के दिन मुझे छुट्टी होती थी और हफ्ते के दिन ही मैं घर वापस जा सकती थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। मुझे अपने बच्चों की बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। उनके मासूम चेहरे मेरी नज़रों के सामने घूम रहे थे और मेरा दिल उनके चेहरे चूमने के लिए बेचैन हो रहा था। काफ़ी देर में ऐसी हालत में लेटी रही। अचानक ही मुझे एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान हो गई और सोचने लगी कि बच्ची के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, जबकि रात के वक्त जो बच्ची मैं लाई थी वो तो फौत हो चुकी थी। फिर ये बच्ची कौन सी है? मैं जानने की कोशिश करने लगी कि ये कहाँ से आ रही है। थोड़ी ही देर बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ये आवाज़ वॉशरूम से आ रही है। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि यहाँ से बाहर भाग जाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने वॉशरूम में जाकर देखा तो बड़ी कयामत आ जाएगी। और मेरा दिल भी ज़्यादा मजबूत नहीं था कि मैं इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती। अभी मैं वॉशरूम के दरवाजे के करीब ही खड़ी थी कि दरवाज़ा खुद ब खुद ही खुल गया। ये देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो गई। अचानक ही मेरी नज़र सामने पड़े हुए पानी के टब पर पड़ी। ये देखकर मेरी सांसें रुक गईं कि पूरा टब उस वक्त खून से भरा हुआ था। मुझे यूं लग रहा था जैसे उसमें कोई बच्चा तैर रहा हो। मैं तेज़ी से आगे बढ़ी। सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। रात को जो बच्ची मैं अपने हाथों से वार्डन के हवाले करके आई थी, अब वो बच्ची इस वक्त उस टब में तैर रही थी। मेरे देखते ही देखते उस बच्ची का चेहरा बिगड़ने लगा और उस बच्ची के चेहरे की जगह एक औरत ने ले ली। वजूद एक छोटी सी बच्ची का था, मगर चेहरा एक बूढ़ी औरत का था। वो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। एक ज़ोरदार चीख मेरे मुंह से निकली। मैं तेज़ी से वॉशरूम से बाहर की तरफ भागी। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला। वार्डन कमरे के अंदर दाखिल हुई और मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहने लगी, क्या हो गया है? क्यों शोर मचाया हुआ है? कहीं पागल तो नहीं हो गई? वार्डन की बात सुनकर मैं तेज़ी से उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस तरह से रोता देखकर अब वो वाकई में परेशान हो गई थी। मुझे कहने लगी, राशिदा, मुझे ठीक ठीक बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? और अभी तुमने चीख क्यों मारी थी? वार्डन की बात सुनकर मैंने उसे थोड़ी देर पहले होने वाले वाक़ये के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक साया आकर लहराया।
वो भी यकदम खौफजदा हो गई थी। वो मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उसी बच्ची को देखा था? मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और वहीं जमीन पर बैठ गई। मैं भी उसके पास बैठी और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ है, आप मुझे बताएं। उसने मुझे डांटा और कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो खुद तुम्हारी बात सुनकर परेशान हो गई हूं। हम दोनों इसी हालत में बैठे हुए थे कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद ही बंद हो गया। ये देखकर हम दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। दोनों के दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे। मैंने उससे कहा कि उस बच्चे की रूह हमसे बदला लेने के लिए आ गई है। मेरी बात सुनकर वार्डन ने मुझे डांटा और कहा कि फजूल बातें करना बंद कर दो, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने तो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को अच्छी जिंदगी देने के बारे में सोचा था, लेकिन हमें क्या पता था कि यूं उसकी अचानक ही मौत हो जाएगी। आपने उस बच्चे को नहीं मारा ना? मैंने वार्डन से सवाल किया। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं उसे क्यों मारूंगी? बल्कि मैं तो उसका ख्याल रखने के लिए उसे अपने कमरे में लेकर गई थी। मुझे क्या पता था कि यूं उसका इंतकाल हो जाएगा। वार्डन ने मुझे कहा कि अब ये फजूल बातें अपने दिमाग से निकालो और जल्दी से बाहर चलो। जितना ज़्यादा अकेला बैठोगी उतना ही ज़्यादा फजूल ख्यालात तुम्हें परेशान करेंगे। वार्डन की बात सुनकर मैंने उसे कहा, दरअसल आज आपने मुझे करने के लिए कोई काम नहीं दिया था, इसी वजह से कमरे में लेटी आराम कर रही थी। चलो ठीक है, फिर से पिछले बाग की जाकर सफाई करो। मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया। जवाबन वार्डन ने मुझे गुस्से से घूरा। मैं ना चाहते हुए भी पिछले सहन में चली गई और वहाँ की सफाई करने लगी। जितनी देर मैं वहाँ पर सफाई करती रही उतनी देर मुझे यूं महसूस होता रहा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि मैं कचरा इकट्ठा करके रखती थी और कोई कचरा फेंक आता था। ये कोई ऐसी मामूली बात भी नहीं थी कि जिसे मैं नज़रअंदाज कर देती। मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा शैतानी खेल शुरू हो गया है और मैं उस शैतानी खेल में बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। शाम तक मैं उसी बाग की सफाई करती रही और शाम तक ही मेरे साथ अजीबो गरीब वाक़यात पेश आते रहे। इस दौरान वहाँ पर एक बच्चा भी आया था। वो बच्चा काफ़ी देर तक मेरे सामने बैठा रहा और मुझे अजीबो गरीब नज़रों से देखता रहा। पहले तो मेरे दिल में आया कि उसे यहाँ से वापस भेज दूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ सोचकर उसे वहीं पर बैठे रहने की इजाज़त दे दी। एक तो वो चेहरे से बहुत परेशान नज़र आ रहा था और दूसरा उसके हाथ भी सुर्ख पड़े हुए थे, जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि थोड़ी ही देर पहले उसे बहुत ही शदीद मार पड़ी है और वो इस मार के गम को भूलने के लिए ही यहाँ पर आया है। काफ़ी देर तक मैं सफाई करती रही, फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। अब मेरी कमर बहुत बुरी तरह से दर्द कर रही थी, इसीलिए मैं उस बच्चे के पास जाकर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। मैं उससे छोटे छोटे सवाल पूछ रही थी, लेकिन वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और बाग में मौजूद एक पौधे को घूरे चला जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं तंग आ गई। मैंने उसे कहा, चलो बेटा, अब जल्दी से यहाँ से जाओ। अगर वार्डन को पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत डांटेगी। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो बोला तो उसकी आवाज़ बहुत सर्द थी। उसने मुझे कहा कि वार्डन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि वो तो खुद अभी एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही है। पहले वो खुद को तो उस सबसे बचा ले, फिर वो मुझे मारने के बारे में सोचे। उसने ये बात बहुत ही नफरत आमेज लहजे में कही थी। उसकी बात सुनकर चंद लम्हों के लिए तो मैं डर ही गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हो और तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम है? वो मुस्कुरा दिया और मुझे बोला कि मुझे हर चीज़ के बारे में मालूम है, कोई भी चीज़ मुझसे छुपी हुई नहीं है। आप एक अच्छी औरत हैं, इसी वजह से मैं आपको हर चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। मगर आप यहाँ ज़्यादा अरसे तक यहाँ पर रहीं और वार्डन के साथ मिलकर काम करती रहीं तो आपका अंजाम भी वार्डन की तरह का ही होगा। ये कहकर वो दोबारा से खामोश हो गया। मैंने बेसब्री से उससे पूछा,
कि वार्डन का क्या अंजाम होगा, मुझे भी इस बारे में बताओ। वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, ये तो मैं अभी नहीं देख पाऊंगा, ये तो सिर्फ वार्डन ही अपनी जान पर बर्दाश्त करेगी। जब वो वहां से उठा तो वो लंगड़ा कर चल रहा था। उसे लंगड़ा कर चलता देखकर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि जहां तक मुझे अंदाजा था यहां पर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जो कि लंगड़ाता था। शायद कहीं गिरने की वजह से उसके पाँव में मोच आ गई थी, इसी वजह से वो ऐसे चल रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हारे पाँव को? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, ये तो एक लंबे अरसे से खराब है और कभी भी ठीक नहीं हो सकता, अब मैंने ऐसे ही चलना है। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो लंगड़ा हो, जबकि तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हें यह मसला एक लंबे अरसे से है। शायद मैं तुमसे पहले मिली नहीं हूं। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला कि मुझसे कभी भी कोई नहीं मिला, सिर्फ आप ही हैं जिन्हें यह शर्फ हासिल हुआ है। अब की बार मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? क्या आपने मुझे पहले कभी यहां पर देखा है? उसने दोबारा से मुझसे सवाल किया। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया। उसने मुझे कहा, मैं इस जगह का नहीं हूं, मैं इस बाग का रहने वाला भी नहीं हूं। मैं यहां से थोड़े ही दूर एक वीरान जगह पर रहता हूं, लेकिन कभी कभार यहां पर आ जाता हूं, क्योंकि यहां पर भी मेरे जैसे बहुत से ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है। उस बच्चे की बातें अब मुझे बहुत परेशान कर रही थी। उसकी बातों से अब मुझे वहशत हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद जो मंजर मैंने देखा, उस पर चंद लम्हों के लिए तो मैं यकीन ही नहीं कर पाई। मेरे देखते ही देखते वो बच्चा मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी, मगर मेरी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अपने बाल दोनों हाथों में पकड़ लिए और अपने बाल जोर जोर से नोचने लगी। थोड़ी ही देर बाद मेरे कानों में सरगोशी हुई, अपने बाल नोचने से अच्छा है कि ये काम करना छोड़ दो, वरना नौबत ही आ जाएगी कि तुम्हें अपने बाल जड़ से उखाड़ने पड़ जाएंगे। मैंने खौफजदा नज़रों से सर उठाकर देखा, मगर वहां पर चारों तरफ किसी का भी नामो निशान नहीं था। ज्यादा देर तक मैं वहां पर नहीं बैठी, बल्कि तेजी से भागती हुई यतीम खाने के अंदरूनी हिस्से में आ गई। मैं वार्डन को ढूंढ रही थी, मगर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उस बच्चे की बातें भी मेरे जहन में गूंज रही थी कि बहुत जल्द वार्डन के साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। रात के वक्त मुझे वार्डन दिख गई। वो उस वक्त बाग के पिछले हिस्से में ही बैठी हुई थी। उसने मुझे कहा कि अब मैं ज्यादा अरसे तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। बेहतर यही है कि तुम अपना काम जारी रखो और किसी भी वजह से अपना काम रोकने की कोशिश मत करना। तुम्हें जो बच्चे मिलेंगे तुम उसे मेरे कमरे में छोड़ जाया करना, वहां पर मौजूद एक औरत उसका ख्याल रखा करेगी। वार्डन की बात सुनकर मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया और उससे पूछने लगी, आप इस वक्त कहाँ पर जा रही हैं? मेरी बात सुनकर वो गुस्सा कर गई और मुझे कहने लगी, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझती। उसे गुस्सा करता देखकर मुझे थोड़ी सी खुशी महसूस हुई, क्योंकि इतने अरसे के बाद वो मुझ पर गुस्सा कर रही थी और अब उसकी बातों से बिल्कुल लग भी नहीं रहा था कि जैसे वो मरने के लिए जा रही है। यूं लग रहा था जैसे वो अपनी मर्जी से ये नौकरी छोड़ रही हो। मेरे जहन में अभी भी हफ्ते के 6 दिन चल रहे थे। इन 6 दिनों में मैंने रोज रात को बच्ची लेनी थी और उसे वार्डन के कमरे में छोड़ना था। ये काम अब मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। उस रात दोबारा से वो गाड़ी आई, उसने बच्ची मेरे हवाले की। मैंने उस बच्ची को खामोशी से पकड़ा और वार्डन के कमरे में छोड़ आई। अगली सुबह जब मैंने वहां पर जाकर देखा तो वो बच्ची दोबारा से मुर्दा हालत में मुझे मिली। ये देखकर मैं परेशान हो गई। उस वक्त वहां पर एक औरत भी बैठी हुई थी। मैंने उस औरत से बात करना चाही, लेकिन वो औरत मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने मुझे कहा कि खुदा की यही मर्जी है, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कह सकती।
بہتر یہی ہے کہ تم بھی یہ معاملہ یہیں پر دبا دو اور جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن اب مجھے احساس ندامت ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ان سب بچوں کے قتل میں ہی کر رہی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر نگران کیسے اتنا بے رحم ہو سکتا ہے۔ میں نے نگران کے پاس جا کر اسے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کے وقت میں نگران کے پاس گئی اور اسے ساری بات کے بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور مجھ سے پوچھنے لگا، محترمہ، کیا آپ پاگل ہو گئی ہیں یا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی؟ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، یہاں پر پچھلے 1 مہینے سے کوئی بچی آئی ہی نہیں، اور جس باغ کی تم بات کر رہی ہو اس باغ میں کوئی کمرہ ہی موجود نہیں ہے، اور تم مجھے جس وارڈن کے بارے میں بتا رہی ہو اس وارڈن کو یہاں سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم کسی ذہنی بیماری کا شکار ہو گئی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ اپنا علاج کراؤ۔ نگران کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ پھر میں نے اسے ایک بچے کے بارے میں بھی بتا دیا جو کہ لنگڑا تھا، جس کے ساتھ باغ میں بینچ پر بیٹھی کافی دیر تک باتیں کرتی رہی تھی۔ نگران نے اب کے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور مجھے کہنے لگا، جسے تم باغ کہہ رہی ہو وہ تو بہت ہی پرانا کھنڈر ہے، وہاں پر کوئی بینچ بھی نہیں بنا ہوا۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنا عرصہ میں بے وقوف بنتی رہی تھی۔ میں نے نگران کو کہا کہ اپنی یہ بات میں ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ نگران نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے وہاں سے جانے کا کہا اور جان چھڑاتے ہوئے بولنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، جس دن تم اپنی بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی اس دن میرے پاس چلی آنا، میں بھی تمہاری بات مان لوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے ثبوت چاہیے۔ جب میں اس کے کمرے سے نکلی تب میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سب سے پہلے میں اس باغ کی طرف گئی۔ وہ باغ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ نہ جانے نگران اسے کھنڈر کیوں کہہ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رات کے وقت اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ میں نے وہاں کے ایک چوکیدار کی مدد سے کیمرہ لگوا دیا۔ چوکیدار مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم اس کھنڈر میں کیوں کیمرہ لگوا رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور اسے کہا کہ تمہیں جو کچھ کہہ رہی ہوں تم ایسا ہی کرو۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور دوبارہ سے کیمرہ لگانے لگا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ میں دوبارہ سے وہاں پر کھڑی تھی۔ اچانک ہی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی، لیکن اس بار گاڑی سے اترنے والی شخصیت کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ کوئی بہت ہی خوفناک چیز تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور اب وہاں پر وہی شخص کھڑا تھا جو بچی میرے حوالے کرتا تھا۔ وہ میرے انتہائی قریب آ کر رک گیا اور مجھے کہنے لگا، اتنا عرصہ تم نے میرا ساتھ دیا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ اس دن مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ یہ شیاطین جن تھے اور میں انہی کے ایک کھیل کا حصہ بن گئی تھی، لیکن چونکہ میں نے 3 سے زیادہ لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا تھا اور ان میں سے جو نگران تھا وہ میرے معاملے میں دلچسپی بھی لینے لگا تھا، اسی وجہ سے شیاطین نے اپنا یہ کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی کھنڈر میں موجود تھی۔ اب مجھے سب کچھ ٹھیک سے دکھائی دے رہا تھا۔ اب میری آنکھوں سے وہ جادو اتر چکا تھا۔ بعد میں ایک عامل سے بات کی تو اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ شکر کرو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ صرف ایک کھیل کھیلا ہے، انہوں نے تمہیں اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی کھیل ہے۔
کیونکہ جو مجھے پیسے ملے تھے وہ اصلی تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔